In our last lecture, we were discussing about the data transmission. So as we know, here data means it is the digital data. It is in the form of zeros and ones. Okay. So this data, if we have to transmit from one place to another place, means from sender to receiver, means from transmitter to receiver, then there are two forms or two modes in which we can transmit our data. So here, data transmission means the movement of data which is in the form of bits between two or more digital devices. Data transmission takes place over some physical medium from one computer to another. एक डिजिटल डिवाइस से दूसरे डिजिटल डिवाइस तक अगर हमें डेटा ट्रांसमिट करना है और and suppose that data is in the form of digital data, then there are two modes of transmission of the data, that is parallel transmission and serial transmission. So data transmission is classified into two major categories: parallel transmission and serial transmission. So serial transmission is again transmitted in again classified into two types: serial synchronous and serial asynchronous. Okay, so synchronous transmission and asynchronous transmission are the two types of serial transmission. So now let us first understand what is the meaning of serial and parallel transmission. So serial transmission means transmission of data in the form of bit by bit, means one bit is transmitted per clock cycle, means one bit is transmitted at a time. And in serial transmission, we don't need multiple wires to transmit the data from one place to another place, means from one device to another device. Okay, so in serial transmission, only one wire is required to transmit the data, but only one bit will transmit per clock cycle, means at a time. And in parallel transmission, multiple bits can be transmitted at a time. एक ही समय में, एक ही टाइम में, एक ही क्लॉक साइकिल में हम मल्टीपल बीट ट्रांसमिट कर सकते हैं, और उस मल्टीपल बीट को ट्रांसमिट करने के लिए हमें मल्टीपल वायर्स लगते हैं. इट इज क्लियर? ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज द पैरेलल ट्रांसमिशन. फर्स्ट हम पैरेलल ट्रांसमिशन देखेंगे. सो इस पैरेलल ट्रांसमिशन में you can see here, suppose this is the transmitter device, this one is the transmitter device, and this one is the receiver. Okay, transmitter and receiver. So if you have to transmit 8 bit data simultaneously, means parallelly. So parallel transmission का meaning होता है all at a time, एक ही समय में सब के सब bits transmit होने चाहिए, उसे बोलते हैं parallel transmission. तो यहाँ पे 8 bits है 1 to 8. So suppose these are the bits 0 1 0 0 1 0 1 0. These are the bits that we have to transmit from transmitter to receiver. So here these are the bits represented by their symbols. Here 0 means 0 volt voltage and 1 means some positive voltage, that is suppose of plus 5 volt voltage. Okay, so it is transmitted to the receiver, and this dotted line represent the wires carrying the bits. Okay, these dotted line represent the wires which carrying the bits. So here it is receiving at the receiver. So here you can see 8 different wires are connected from transmitter to receiver to transmit 8 bits simultaneously, means in parallel. Okay, so that is a parallel transmission. So now next is a serial transmission. In serial transmission, here you can see this. In serial transmission, the bits or a byte are serially transmitted one by one as shown in figure below. So here you can see the byte to be transmitted is first stored in a shift register. Then these bits are shifted from MSB to LSB by bit by bit synchronization with clock. Bits are shifted right by one position per clock. अब यहाँ पे जो shift register use करते हैं, आपने शायद आपने पढ़ा होगा, जो शिफ्ट रजिस्टर रहते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट. तो यहाँ पे एक शिफ्ट रजिस्टर यूज करते हैं जहाँ पे सीरियली डेटा लोड किया रहता है और सीरियली डेटा आउट होता है. तो यहाँ पे सीसो शिफ्ट रजिस्टर यूज करते हैं, मतलब सीरियल इन और सीरियल आउट, और पैरेलल इन सीरियल आउट भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो डेटा आउटपुट को सीरियली जाना चाहिए, मतलब बिट बाय बिट जाना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे देखो, a bit which falls out of shift register is transmitted. Hence LSB is transmitted first and MSB
इज द लास्ट बीट गेटिंग ट्रांसमिटेड। तो पहले जो बीट ट्रांसमिट होता है वो LSB रहता है और दूसरा जो बीट ट्रांसमिट होता है वो MSB रहता है। आपको मालूम है जो जो राइट साइड में रहता है वो MSB रहता है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, जिसका वेटेज कम रहता है या ज्यादा रहता है, ऑब्वियसली MSB, और दूसरा रहता है LSB, मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो रहता है उसका वेटेज कम रहता है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट का वेटेज ज्यादा रहता है। तो ट्रांसमिट होते हैं वो कैसा ट्रांसमिट होता है, LSB फर्स्ट ट्रांसमिट होता है, उसके बाद फिर MSB ट्रांसमिट होता है। ओके, so bit shifted, hence LSB transmitted first and MSB last. For serial transmission only one wire is needed between transmitter and receiver. यहाँ पे आप देख सकते हो, for serial transmission only one wire is needed between transmitter and receiver, hence serial transmission is preferred for long distance data communication. तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि serial transmission, for serial transmission only one wire is needed between transmitter and receiver. Okay, तो एक ही वायर लगता है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उसे प्रीफर किया रहता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम मल्टीपल वायर्स नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसका प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल है। अगर मल्टीपल वायर हमें सेंडर से रिसीवर तक अगर यूज करने रहे और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन रहा, सो उसकी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी एंड इट इज नॉट फिजिबल टू। ओके, सो सीरियल ट्रांसमिशन इज ऑलवेज प्रीफर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। देन next, the serial transmission has a serious drawback. As only one bit is transmitted per clock, it requires time corresponding to 8 clock cycles to transmit one byte. अब देखो पैरेलल ट्रांसमिशन में कैसा था कि 8 बीट ट्रांसमिट करने के लिए जितना टाइम लग रहा है, सीरियल में 8 बीट ट्रांसमिट करने के लिए पैरेलल में जितना टाइम लगता है उससे 8 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे एक ही टाइम में 8 बिट ट्रांसमिट होते हैं एट ए टाइम पैरेलल ट्रांसमिशन में। और सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, 8 बिट ट्रांसमिट करने के लिए 8 डिफरेंट टाइम स्लॉट लगते हैं, क्योंकि एक बिट एक ही समय में ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसीलिए सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इस एग्जांपल का अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो 8 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए दैट इज द सीरियल ड्रॉबैक ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। Okay, the parallel transmission needs only one clock cycle to transmit a byte. The time can be reduced by increasing the clock frequency. समझ में आ गई? So यहाँ पे देखो आप, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम ये डायग्राम दी है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो MSB एक सपोज एक बाइट है, एक डिजिटल बाइट है 10001010, और ये शिफ्ट रजिस्टर है। शिफ्ट रजिस्टर मतलब क्या है, एक ऐसा रजिस्टर जो बीट को शिफ्ट करता है। ओके, शिफ्ट करता है मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह को मूव करता है। तो यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर है एट ए ट्रांसमीटर, और यहाँ पे MSB है और यहाँ पे LSB है। तो जब ये ट्रांसमिट होगी बीट तो पहले LSB ट्रांसमिट होगा, यहाँ पे देख सकते हो पहले LSB ट्रांसमिट होगा फिर MSB ट्रांसमिट होगा। तो सिंगल वायर यूज फॉर ट्रांसमिशन, यहाँ पे सिंगल वायर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया है। ये देखो 11010001। ओके, सो आपको समझ में आ गया ये डायग्राम सीरियल ट्रांसमिशन की, जैसे पैरेलल की हमने देखा वैसे सीरियल की है। सर क्लॉक फ्रीक्वेंसी का है? क्लॉक फ्रीक्वेंसी मींस क्लॉक सिग्नल इज रिक्वायर्ड। अगर हमें कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना रहता है, अगर हमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना रहता है तो उसके लिए क्लॉक सिग्नल लगता है। तो अगर जब वो क्लॉक सिग्नल हम देते हैं उसको तभी वो बीट ट्रांसमिट होती है, नहीं तो नहीं होती। वो आप डिजिटल टेक्निक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे उसको। ओके, सो क्लॉक बिना क्लॉक के डेटा ट्रांसमिट होता नहीं, या वो जो बीट रहता है वो ट्रांसमिट नहीं होता, या कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता, उसको क्लॉक सिग्नल बोलते हैं। दैट इज द concept that you will learn in your digital technique subject. Okay, so type of serial transmission. अब serial transmission के दो टाइप्स है, synchronous data transmission and asynchronous data transmission and isosynchronous transmission. तो अब देखो asynchronous transmission क्या रहता है, यहाँ पे asynchronous transmission. Okay, so in asynchronous transmission the transmission यहाँ पे asynchronous transmission है। So in asynchronous transmission, the transmitter can begin
द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बाइट्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखो, in asynchronous transmission the transmitter can begin the transmission of data bytes at any instant of time। अब कौन से भी समय में, अब यहाँ पे कैसा रहता है, जब हमें डेटा ट्रांसमिट करना रहता है तो जब ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट करेगा तब वो रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट लेता है कि आई एम गोइंग टू ट्रांसमिट द डेटा, आर यू रेडी टू रिसीव द डेटा। तो अगर रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट का रिप्लाई दिया कि यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा, देन ट्रांसमीटर ट्रांसमिट द डेटा। ओके, तो उसको सिंक्रोनस ट्रांसमिशन बोलते हैं। पर यहाँ पे असिंक्रोनस में क्या होता है कि एनी टाइम यहाँ पे कोई टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता है ट्रांसमीटर और रिसीवर में। ट्रांसमीटर कभी भी डेटा ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीवर इज एनी टाइम रेडी टू रिसीव द डेटा। ठीक है, तो ट्रांसमीटर कभी भी डेटा ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीवर कभी भी उसको रिसीव कर सकता है। तो देयर इज नो टाइम सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, तो उसको बोलते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सो इन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन द ट्रांसमीटर कैन बिगिन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बाइट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कौन से भी समय में वो ट्रांसमिट कर सकता है। only one byte is sent at a time। okay, only one byte is sent at a time। after sending one byte the next byte can be sent after an arbitrary time delay as shown in figure below। तो देखो, only one byte is sent at a time, या ये फिगर में आप देख रहे हो, यहाँ पे ये स्टार्ट है और ये स्टॉप बिट है। कभी भी जो हम डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो बाई सीरियली अगर ट्रांसमिट करते हैं 0101 के फॉर्म में, तो ऑलवेज जब एक बीट रहती है, एक डिजिट, बाइनरी डिजिट, उसको बीट बोलते हैं, 0 या 1, उसके दो ही बीट रहते हैं डिफरेंट। तो अगर 8 बीट रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक बाइट बोलते हैं। 8 बीट को एक बाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाइट है, डेटा बाइट, और डेटा बाइट को डिस्टिंग्विश करने के लिए या सेपरेट करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप बीट होते हैं। ठीक है, स्टार्ट बीट और स्टॉप बीट। और एक बाइट होने के बाद फिर एक आइडल टाइम रहता है। आइडल टाइम मतलब खाली समय, उस समय में कौन सा भी डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है, दैट इज द आइडल टाइम। आइडल मतलब खाली, रिकामा। ओके, फिर यहाँ से 0 है। 0 का मतलब होता है कि वो दूसरी बाइट स्टार्ट हो गई है, फिर ये बाइट स्टार्ट होंगी, फिर इस बाइट में जो कुछ बीट्स है वो ट्रांसमिट होंगे, फिर यहाँ पे 1 आता है। इस 1 का मतलब होता है कि बाइट एंड हो गई। ओके, फिर आइडल टाइम रहता है। फिर 0 मतलब फिर स्टार्ट बीट, फिर बाइट, फिर एंड बीट, फिर आइडल टाइम, ऐसा रहता है। तो बाइट स्टार्ट हो गई, इसकी इंडिकेशन के लिए बाइनरी 0 रहता है, फिर बाइट स्टार्ट होती है। ओके, ये 0 जो रहता है इट रिप्रेजेंट्स स्टार्ट ऑफ द बाइट। फिर ये जो रहता है हमारा बाइट, इसमें जो हमारा डेटा बाइट, इसमें हमारा डेटा रहता है, डिफरेंट डेटा के बीट्स रहते हैं, और वो ट्रांसफर होने के बाद फिर 1 आता है। ये 1 क्या है, वो साइन है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि अब बाइट स्टॉप हो गई है। ओके, वो स्टॉप होने के बाद फिर आइडल टाइम रहता है। और आइडल टाइम का मतलब होता है कि उस समय में कुछ भी डेटा ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब दो डेटा बाइट के बीच में वो क्या है, एक खाली समय है। ठीक है, मतलब ब्लैंक टाइम, उस ब्लैंक टाइम में कुछ भी डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। फिर उस ब्लैंक टाइम खत्म होने के बाद फिर से 0 टाइम। ओके, फिर से क्या होता है यहाँ पे 0 बाइट। 0 बिट का मतलब होता है कि फिर से दूसरी डेटा बाइट स्टार्ट हो गई है, और दूसरी डेटा बाइट का जो डेटा है फिर वो इसमें ट्रांसमिट होगा। उसके बाद फिर 1 रहेगा, तो 1 का मीनिंग होता है कि अब वो बाइट स्टॉप हो गई है। उसके बाद फिर से आइडल टाइम रहेगा। आइडल टाइम मतलब दो डेटा बाइट के बीच में थोड़ा हम गार्ड टाइम बोलते हैं उसको, या एक खाली समय रहता है जिस समय में कोई भी टाइम स्लॉट रहता है, जिस टाइम स्लॉट में कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है। सो ऐसी ये फ्रेम रहती है, उसको एक फ्रेम बोलते हैं, डेटा फ्रेम। तो ये असिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है। एज द डेटा ट्रांसमिशन कैन commence at any instant, it becomes difficult for receiver to understand the instant at which the byte has been transmitted। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि डेटा ट्रांसमिशन कैन कमेंस एट एनी इंस्टेंट, कौन से भी समय में डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर रिसीवर टू अंडरस्टैंड द इंस्टेंट एट विच द बाइट हैज बीन ट्रांसमिटेड। तो रिसीवर को लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है जज करना कि कब डेटा बाइट आने वाली है। ठीक है, so to help the receiver to receive the data byte, start and stop bits are used।
along with each data byte as shown in figure. The start bit is always 0 and the end bit is always or stop bit is always 1. मैंने आपको already explain किया ये, ठीक है. So that is a asynchronous transmission. The idle time between the adjacent data byte is not constant. The idle time is also called as gaps between the data bytes. Okay. In the asynchronous transmission, the timing of signal is not important. Instead, information is received and translated by the pattern which are agreed upon by the sender and receiver. तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जो ट्रांसमिशन asynchronous transmission में जो टाइमिंग रहता है, टाइमिंग ऑफ द सिग्नल is not important. Okay. Instead, information is received and transmitted by the patterns which are agreed upon by sender and receiver. तो कौन से पैटर्न में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है और रिसीव करना है, वो सेंडर और रिसीवर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है. So as long as these patterns are being followed, the receiver can receive the information without any problem. Okay. वो पैटर्न अगर फॉलो हो गए तो उसके बाद ट्रांसमिशन और ट्रांसमीटर और रिसीवर में कम्युनिकेशन होता है या डेटा ट्रांसमिशन होता है. अब देखो पैटर्न मतलब क्या. अब यहाँ पे जो स्टार्ट और स्टॉप बीट है, यहाँ पे जो पैटर्न है 1 0 1 0 1 0, तो हम कुछ भी पैटर्न ले सकते हैं. अगर हमें सपोज एनकोडिंग करना है अच्छे से तो हम ये पैटर्न कुछ भी ले सकते हैं, 0 0 1 1 0 1 0, ऐसा कुछ भी एनी पैटर्न यू कैन टेक. तो यहाँ पे अगर आपने 0 लिया तो यहाँ पे दूसरा जो बीट है आप दूसरा 0 ले सकते हैं, यहाँ पे फिर से 0 ले सकते हैं, यहाँ पे 1 ले सकते हैं. तो एनी पैटर्न यू कैन फॉलो. दो बाइट्स, अब यहाँ पे हम मल्टीपल बाइट्स ट्रांसमिट करने वाले हैं, बराबर है. तो मल्टीपल बाइट ट्रांसमिट करने वाले हैं, तो अगर मल्टीपल बाइट हम ट्रांसमिट करने वाले हैं, इसका मतलब क्या, दो बाइट को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम बाइट का स्टार्ट इंडिकेशन बिट और स्टॉप इंडिकेशन बिट उसमें इंट्रोड्यूस करने वाले. बात समझ में आ रही है. सो इसलिए वो जो स्टार्ट और स्टॉप बिट का जो पैटर्न है वो हमें जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं. ओके. सो एनी प्रॉब्लम? नो सर. Okay. So why it is called asynchronous? So this mechanism is called as asynchronous. This mechanism is called asynchronous because at the byte level, the sender and receiver do not have to be synchronized. However, within each byte, the receiver should still be synchronized with incoming bit stream. This means that some synchronization is required only for the duration of single byte. हमने यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप बिट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है, तो हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं. मैंने आपको बोला ऑलरेडी, at any instant of time you can send the data and receiver can receive the data. Response to the start and stop bit. देखो, when a receiver detects a start bit, it will set the timer and begins counting bits as they come in. अब देखो, जैसे ट्रांसमीटर ने डेटा ट्रांसमिट किया तो रिसीवर उसको रिसीव करेगा एंड रिसीवर विल डिटेक्ट वेदर इट इज स्टार्ट बिट और नॉट. अगर रिसीवर ने स्टार्ट बिट डिटेक्ट किया तो तब से रिसीवर उसका टाइमिंग सेट कर देगा और उस समय से रिसीवर विल स्टार्ट द receiving the data. Okay. And then receiver will identify the start bit, stop bit of multiple bytes and receiver will continuously receive the data. Okay. So after n bits, the receiver searches for the stop bit. अब n bit मतलब any number of bits, वो खत्म होने के बाद receiver क्या करेगा? It will search for the stop bit. As soon as it detects the stop bit, it will wait until it detects the next start bit. बराबर है. Start bit आ गया, फिर डेटा रिसीव होगा, फिर वो स्टॉप बिट आएगा. स्टॉप बिट आने के बाद थोड़ा एम्प्टी टाइम आएगा. एम्प्टी टाइम होने के बाद फिर से स्टार्ट बिट आएगा. स्टार्ट बिट के बाद फिर से बाइट आएगा. बाइट होने के बाद फिर से स्टॉप बाइट आएगा. सो ऐसा डेटा वो रिसीव करेगा जैसे ट्रांसमिटर ट्रांसमिट करेगा. As soon as it detects the stop bit, it will wait until it detects the next start bit. So the meaning of asynchronous is actually asynchronous at the byte level, but the bits are still synchronized, so their durations are same. तो देखो उसका मीनिंग जैसे asynchronous है क्योंकि वो कभी भी डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, पर जो बीट्स रहते हैं स्टार्ट और स्टॉप बिट में ट्रांसमीटर और रिसीवर ऑलवेज सिंक्रोनाइज होना चाहिए. ओके. सो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ असिंक्रोनस ट्रांसमिशन. असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? एडिशनल बीट्स
कॉल्ड स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर इक्वल टू यूज। अब वो स्टार्ट और स्टॉप बिट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, स्टार्ट और स्टॉप बिट में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, वो सिर्फ इंडिकेशन के लिए है। पर इंडिकेशन के लिए हम एक बाइट के पीछे अगर 2 बीट यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ बिट इंक्रीज होने के कारण बैंडविड्थ बढ़ती है सिग्नल की, तो दैट इज अ डिसएडवांटेज। देन इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द सैम्पलिंग इंस्टेंट्स, हेंस द टाइमिंग एरर कैन टेक्स प्लेस। तो हमें कौन से समय पे सैम्पलिंग हो रहा है या उस एनालॉग का डिजिटल में जब कन्वर्शन होता है तब सैम्पलिंग यूज करते हैं हम, तो हमें वो टाइम मालूम नहीं रहता है, तो टाइमिंग एरर यहाँ पे आ सकता है, मतलब रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डेटा रिसीव हो सकता है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है। देन स्टार्ट एंड स्टॉप बीट्स एंड आइडल टाइम मेक्स द असिंक्रोनस ट्रांसमिशन स्लो। तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, स्टार्ट बीट है, स्टॉप बीट है, या बीच में 2 बाइट के बीच में एक एम्प्टी टाइम रहता है, एक खाली समय रहता है टाइम स्लॉट, उसके कारण क्या होता है जो ट्रांसमिशन है वो स्लो हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज नेसेसरी, इज नॉट नेसेसरी, ये उसका एडवांटेज है, क्योंकि हमें सिंक्रोनाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, कभी भी हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और कभी भी रिसीव कर सकता है। सो नो नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। सेकंड एडवांटेज है, it is possible to transmit signal from the sources having different bit rate. Okay, it is possible to transmit signals from the sources having different bit rate. Different bit rate जिस सोर्सेस के है वो सोर्सेस से हम सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, इसलिए हम मल्टीपल सोर्सेस से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीवर विल रिसीव दैट डेटा। ओके, द ट्रांसमिशन कैन कमेंस as soon as the data byte to be transmitted becomes available. Transmission can commence as soon as the data bytes to be transmitted becomes available. ट्रांसमीटर के बाद जब डेटा अवेलेबल रहेगा तब ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट करेगा, तो एज देयर इज नो टाइम रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं है। दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इजी टू इम्प्लीमेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन इजी है। इट इज चीप स्कीम, मतलब चीप है, and it is the effective scheme. Okay, so these are the some advantages of asynchronous transmission of the data. उसके applications कहाँ पे है? Applications of asynchronous transmission, the connections of keyboard to a computer is an example of asynchronous transmission. हमारा जो कीबोर्ड रहता है और कंप्यूटर रहता है, so उसका जो कम्युनिकेशन रहता है, the communication between keyboard and computer is an example of asynchronous transmission. हम कभी भी कीबोर्ड में बटन्स प्रेस करके इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को, सो देयर इज नो टाइम रिस्ट्रिक्शन और टाइम सिंक्रोनाइजेशन, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ asynchronous transmission. Okay, then next is the synchronous transmission. So what is synchronous transmission? Synchronous means here we require time synchronization between transmitter and receiver. तो जब ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों रेडी है, ट्रांसमीटर रेडी है सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, उसी समय जब रिसीवर रेडी है रिसीव करने के लिए, तभी हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे, मतलब ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ पे देखो, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉमन मास्टर क्लॉक, हेंस the beat which are being transmitted are synchronized to a reference clock. अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला कि क्लॉक एक क्या रहता है, क्लॉक्स आर नथिंग बट स्विचेस, एक जैसा हाई और लो स्विचेस रहते हैं। जब क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे हम तभी वो डेटा ट्रांसमिट होगा, अगर क्लॉक नहीं मिला तो डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, सो नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज्ड, instead the bytes are transmitted as a block in a continuous stream of bits as shown in figure. There that is an inner block idle time which is filled with idle character. अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम से आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। This is the diagram for asynchronous transmission. Sorry, synchronous transmission. Asynchronous we have already discussed. So here this is the data byte. Data byte, idle time, data byte, flag, idle time, data bytes, flag, idle time. Idle मतलब खाली, मतलब empty, म्हणजे रिकामा म्हणतो आपण मराठीमध्ये त्याला,
सो आइडल मीन्स एम्प्टी। उस एम्प्टी टाइम मतलब क्या, उस टाइम में, उस टाइम स्लॉट में हम कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते हैं। अब दो बाइट्स के बीच में हम ये टाइम क्यों रखते हैं, क्योंकि देयर शुड नॉट बी ओवरलैपिंग ऑफ एडजेसेंट डेटा बाइट्स, इसलिए हम दो डेटा बाइट के बीच में कभी भी खाली समय रखते हैं। तो देखो दिस इज द वन ब्लॉक। अब वहां पे कैसे हमने बाइट बाय बाइट डेटा ट्रांसमिट किया था, वहां पे ब्लॉक बाय ब्लॉक करेंगे, मतलब मल्टीपल डेटा बाइट का हम एक ब्लॉक फॉर्म करेंगे यहाँ पे। देखो दिस इज द वन ब्लॉक, दिस इज द वन ब्लॉक, अनदर ब्लॉक, so multiple block we can form here. So here you can see there are multiple data bytes in one block, and uh, one flag is there. This flag is nothing but an indication start of the block. अब देखो the receiver operates at exactly the same clock frequency as that of the transmitter as both are synchronized with each other. अब synchronization का मीनिंग ये होता है कि जब जिस क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमीटर वर्क कर रहा है, उसी क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे रिसीवर भी वर्क करेगा। मतलब जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर में यूज की है, जिस स्पीड से ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, उसी स्पीड से रिसीवर को डेटा को रिसीव करना है। मतलब क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ data transmission of transmitter should be exactly equal to the clock frequency of data reception of receiver. Okay, this is the essential for error-free reception of data. Flag is sequence of fixed number of bits which is prefixed to each block as shown in figure. Flag is useful in identifying the beginning of the block. जैसा मैंने पहले आपको बोला, ये फ्लैग मतलब क्या है, फ्लैग का मीनिंग होता है ये एक इंडिकेशन बाइट रहती है। इंडिकेशन बाइट, इंडिकेशन मतलब वो इंडिकेट करती है। उस सपोज उसमें कोई पैटर्न होगा 1010 0011 ऐसा कुछ तो पैटर्न होगा, वो पैटर्न क्या रिप्रेजेंट करेगा कि दैट इज द स्टार्ट ऑफ द बीट, स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक। ओके, सो वहां पे ब्लॉक स्टार्ट होगा, इजंट इट? सो ब्लॉक स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर डेटा बाइट्स रहेंगे, फिर वो डेटा बाइट्स ट्रांसमिट होंगे, फिर वो आइडल टाइम रहेगा। आइडल टाइम मतलब इट इज द स्पेस बिटवीन टू डिफरेंट ब्लॉक। और जो स्पीड से जिस स्पीड में ये ट्रांसमिटर डेटा ट्रांसमिट करेंगे, उसी स्पीड से रिसीवर उसको रिसीव करेंगे। अगर ट्रांसमिटर और रिसीवर का जो स्पीड है वो अगर कम ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, एरर ऑकर होगा डेटा ट्रांसमिशन में। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटर एंड रिसीवर बोथ शुड बी सेम और सिंक्रोनाइज, सो दैट इज द synchronous transmission. So in this synchronous transmission, the bit stream to be transmitted is combined into longer frames. A frame would contain more than one byte. अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को फ्रेम भी बोलते हैं। फ्रेम मतलब जिसमें मल्टीपल बाइट्स रहते हैं, मल्टीपल बाइट का एक फ्रेम बनता है। There is no gap between the successive frame. The receiver separates the bit stream into bytes for purpose of decoding. देखो दो बाइट के बीच में यहाँ पे कोई गैप नहीं है टाइम का, यहाँ पे मल्टीपल बाइट कंबाइन करके फिर ब्लॉक फॉर्म किया है, फिर दो ब्लॉक के बीच में आइडल टाइम है। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर नॉट यूज, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर नॉट यूज, इंस्टेड बिट्स आर ट्रांसमिटेड सीरियली वन आफ्टर द अदर। देखो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट यहाँ पे यूज नहीं किए, इंस्टेड बिट्स आर ट्रांसमिटेड सीरियली वन आफ्टर अदर। सीरियली बिट्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, और सिर्फ फ्लैग रजिस्टर एक इंडिकेशन के लिए यहाँ पे यूज किया है। स्टार्ट और स्टॉप बिट यहाँ पे नहीं यूज किए। The grouping of these bits is responsibility of the receiver. Bits की grouping करना ये receiver की responsibility। Next यहाँ पे जाएंगे advantages। अब देखो what are the advantages? So the speed of transmission is much higher than that of the asynchronous transmission. This is due to the absence of gap between data units and absence of start and stop bit. यहाँ पे स्टार्ट बिट भी नहीं है, स्टॉप बिट भी नहीं है, और दो सक्सेसिव बाइट के बीच में कोई टाइम का गैप भी नहीं है, इसलिए इसका स्पीड असिंक्रोनस से ज्यादा रहेगा। देन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर नॉट नीडेड एनीमोर, ये सब मैंने आपको बोला, ये फर्स्ट पॉइंट में एक और होता है। फिर टाइम एरर आर रिड्यूस ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन की वजह से टाइम का एरर रिड्यूस होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एक्यूरेसी ऑफ द रिसीव्ड डेटा इज डिपेंडेंट entirely on ability of the receiver to count the received bit accurately. Okay, then the transmitter and receiver have to operate at the same clock frequency. This requires proper synchronization
which makes the system complicated. यहाँ पे ट्रांसमीटर रिसीवर में प्रॉपरली टाइम सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, दोनों की क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, इसलिए सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ये उसका डिसएडवांटेज है. जैसे हमने पहले देखा, एक्यूरेसी ऑफ द रिसीव्ड डेटा इज डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू काउंट द रिसीव्ड बिट्स एक्यूरेटली. ठीक है. फिर एप्लीकेशंस क्या है उसके, एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन. द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ड्यू टू इट्स हाई स्पीड इज यूज्ड फॉर द डेटा एक्सचेंज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अगर हमने कनेक्शंस किया, सो बिटवीन टू कंप्यूटर्स if you want to set up a communication, then synchronous transmission is used. Okay, so synchronization मतलब the byte synchronization is achieved at the data link layer level for synchronous transmission between computers. byte synchronization जरूरी है. हाँ बोलो. कम्युनिकेशन कौन से मीडियम से होगा, मतलब डेटा ट्रांसफर कंप्यूटर में केबल थ्रू या फिर वायरलेस? केबल थ्रू. डिजिटल जो कम्युनिकेशन रहता है, बीट का कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन, वो वायर से होता है. ठीक है. वहाँ पे अगर पैरेलल कम्युनिकेशन करना रहा तो हमें मल्टीपल वायर यूज करना पड़ता है, और अगर सपोज सीरियल कम्युनिकेशन करना है तो एक ही वायर लगता है वहाँ पे. और जब अगर हमें वायरलेस कम्युनिकेशन करना है दो कंप्यूटर के बीच में, तो वहाँ पे हमें मोडेम यूज करना पड़ता है. मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, और मोडेम को फिर हमें एंटेना भी वहाँ पे यूज करना पड़ता है. और एंटेना क्या करता है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है. ठीक है. वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम मोडेम यूज करते हैं. मोडेम एक्चुअली इसके लिए भी मोडेम लगता है हमें, वायर कम्युनिकेशन के लिए भी मोडेम लगता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए भी मोडेम लगता है. हम बिना मॉड्यूलेशन के सिग्नल ट्रांसफर नहीं करते हैं. समझ में आएगा? वो जो पार्ट है दैट वी विल सी इन आवर अपकमिंग टॉपिक्स. ओके ओके सर. हाँ. अब यहाँ पे देखो, कंपैरिजन ऑफ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ट्रांसमिशन, उसका कंपैरिजन दिया है. सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पे पैरामीटर्स दिए डिफरेंट, और यहाँ पे असिंक्रोनस ट्रांसमिशन और यहाँ पे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन. ठीक है. तो यहाँ पे पैरामीटर है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन, यहाँ पे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है. तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है? असिंक्रोनस में नॉट नीडेड, असिंक्रोनस में सिंक्रोनाइजेशन नॉट नीडेड. ओके. सिंक्रोनाइजेशन नॉट नीडेड, और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में सिंक्रोनाइजेशन नीडेड. स्टार्ट एंड स्टॉप बिट असिंक्रोनस में यूज करते हैं, सिंक्रोनस में नॉट यूज. ओके. गैप्स बिटवीन डेटा ब्लॉक्स, डेटा ब्लॉक के बीच में गैप है क्या? यस, प्रेजेंट है असिंक्रोनस में. सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डेटा गैप बिटवीन डेटा ब्लॉक्स इज एब्सेंट. ओके. यहाँ पे स्पीड, असिंक्रोनस की स्पीड क्या है? लो है, मतलब कम है. सिंक्रोनस की स्पीड हाई है, मतलब ज्यादा है. ओके. एप्लीकेशंस, asynchronous transmission is used to set up the communication between computer and keyboard, and synchronous transmission is used to set up the communication between two computers. Okay, means two digital devices. So any doubt in this? If you have any doubt, you can ask me, because this is important to know how data transmits from one device to another device. What are the modes of transmission of the data? Okay, data is transmitted in serial and in parallel. There are two modes of transmission. Serial में एक ही वायर लगता है, parallel में मल्टीपल वायर लगता है. हमने ऑलरेडी देखा कि पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए जो स्ट्रिप हम यूज करते हैं, ओके, जो स्ट्रिप हम यूज करते हैं, वो स्ट्रिप मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. उसको डेटा बस बोलते हैं, डेटा बस या एड्रेस बस, उसको सिंपली सिस्टम बस भी बोलते हैं. तो आपने शायद देखा भी होगा उसको. डेटा बस इज अ सिस्टम विद इन कंप्यूटर विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर. अब देखो यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको, ये स्ट्रिप, इसमें मल्टीपल वायर्स होते हैं, और उस मल्टीपल वायर से पैरेलली डेटा ट्रांसमिट होता है. अगर सपोज यहाँ पे 8 वायर है तो 8 बीट डेटा साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट होता है, मतलब पैरेलली ट्रांसमिट होता है. अगर यहाँ पे 16 वायर है तो 16 बीट डेटा एट ए टाइम ट्रांसमिट होता है. अगर यहाँ पे 64 वायर है तो 64 बीट डेटा एट ए टाइम ट्रांसमिट होता है. तो ये है हमारी जिसको हम डेटा बस बोलते हैं. ओके. सो ये ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको शायद बताया था. तो ये भी देखो, you might have seen this data strip जो कंप्यूटर में कनेक्शंस के लिए यूज करते हैं मदरबोर्ड में,
ये जनरली शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं. ओके, फॉर पैरेलल ट्रांसमिशन. You can see it. So there are multiple images are available on Google. You can Google it. This is also the data bus or system bus which is used to transmit the data parallelly. There are multiple wires in a one single strip. You can see this in this image. Okay. So any doubt you can ask, for any difficulty if you have, so that for tomorrow's lecture we are going to start the electromagnetic spectrum. This is a very important topic. Electromagnetic spectrum we are going to start in our next lecture. So if you have any doubt, you can ask the doubt. I have recorded this lecture, so I will share this recording with you. I will upload this recording on YouTube, and I will share link to you. Those who missed it, they can watch, and those who want to revise it, they can also watch and revise it. Okay. सर Yes. सर हे राईट कधी करायचं मग?